Okay. So good morning everyone. स्वागत है तुमचं. Welcome you all for the next chapter and the next part of this science lecture. Okay. The first lesson was the living bud and the classification of microbes. Right. So we were on this point. आपण काल या ठिकाणी होतो. कुठे क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्सला. तर त्याच्या आधी आपण थोडंसं स्मॉल रिव्हिजन करून घेऊ की काल आपण काय काय पाहिलं. सो बेसिकली आपण काल काय पाहिलं की क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय त्याची डिव्हिजन बघितली. The process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. हे आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन कसं करतात एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं आपण सर्वात पहिले कसं क्लासिफाय करतो. देन ते युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर वाईज सेलच्या स्ट्रक्चर वाईज त्याला आपण क्लासिफाय केलं. सो नंतर किंगडम थ्रू आपण त्याला कसं क्लासिफाय करतो ते पाहिलं. त्यानंतर या साईडला आपण जर आपण लक्ष दिलं तर सो इफ वी लुक ॲट ओव्हर हिअर तर hello. Huh? If we look over here, so we will see the 5 categories where the width curve divided. So that is complexity of the cell structure, then complexity of organisms, mode of nutrition, lifestyle, and the relationship. So these are the things where he divided or he classified the organism. So uske baad we saw the Monera, then Protista, and then fungi. So this we saw the yesterday only. So next thing we are going to see what is microbes or classification of microbes. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं microbes के बारे में. So here is the chart. One small chart again. आता दिसते सर्वांना? Oh, this time. Alright, good. दोन मिनिटं. Alright, good. No problem. So the classification of microbes. So basically why we need the classification? Because the microbes are large in number. They are largest in number. That's why we need the classification. So how we can classify our microorganisms? So first thing, early we see the prokaryotic and eukaryotic. We have to divide them firstly. Then we have to see in which criteria they come, like bacteria, protista, fungi, and algae. So let's see what is that. What is that things like bacteria, protista, fungi, and algae? What is that? So go for the next. The firstly we will go for bacteria. So bacteria, the bacteria size is one micrometer to 10 micrometer. So basically the size is this. This is the bacteria size. And what is the characteristic and what are they? Let's find out. So basically what is bacteria? They are unicellular, independent, parasitic organisms. And sometimes many bacteria together from colonies. Okay. सो बेसिकली बैक्टीरिया क्या रहते हैं वो बैक्टीरिया रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो इंडिपेंडेंट पैरासिटिक रहते हैं. सो व्हाट इज पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली व्हाट दे आर डिपेंड ऑन अदर बॉडी. So that is called the parasitic organism also. So sometimes the many bacteria to come together and form colonies. Bacteria cells are prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. So कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि what is that. ओके सो कल भी आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज दैट. सो लेट्स सी द बैक्टीरिया cells and prokaryotic with the cell wall but the distinct nucleus or the cell organelles are absent. So they reproduces by binary fusion. Okay, and in favorable conditions the bacteria grows vigorously and can double their numbers in the minute. ओके सो ये तो कल हमने एक्सप्लेन किया था. तो फिर से हम लोग लाइटली उसको देखते हैं कि व्हाट इज दैट. तो यूनिसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है, एंड बैक्टीरिया आर प्लूरल एंड बैक्टीरिया आर सिंगुलर. ओके सो अगर बैक्टीरिया अगर कोई भी बोला तो दे मीन्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया और नंबर ऑफ बैक्टीरियम वी कॉल दिस वी कैन से द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम आर सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके सो सो दिस इज द थिंग. आगे हम जो बढ़ते हैं कि क्या है. सो दिस इज सम बैक्टीरिया. So Cocos and Bacillus and Bacillus vibros or vibros or Spirillum. So these are some bacteria जो हमें mainly मिलते हैं और we can see. I mean we can easily found anywhere. So that is the things. So in the favorable condition, the bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. अगर situation अच्छी हो
और उनका like they are good in favorable conditions, so they can double their number in 20 minutes. Okay, समझ में आ रहा है? यस, शिवम मिश्रा. Yes, sir. ओके, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है. सौरभ, सॉरी, ऋषभ समझ में आ रहा है? हेलो, यस, समझ में आ रहा है? प्रगति, स्नेहा. Yes, sir. ऑलराइट, गुड. तो अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बोल सकते हो कि फास्ट हो रहा है. अभी हो आगे सर. बढ़ते हैं. ओके, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. आगे बढ़ते, दैट इज प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोन सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोटोजोआ. ओके, तो प्रोटोजोआ अप्रोक्सीमेटली उसका साइज यहाँ पे बताया गया है कि 200 नैनोमीटर. तो लेट्स सी व्हाट इज द साइज. द साइज इज 200 नैनोमीटर. द साइज एक बोलते हैं ना, एक आइडिया के लिए आप याद रखो कि व्हाट इज द साइज बेसिकली. तो उसको हम आगे काम आएगा कि why we have to keep that mind. So that is protozoan. The protozoans are found in soil, fresh water, and sea water. Some are found in body of other organisms, are pathogenic. So what are they? The protozoans. Protozoans soil में या कोई fresh water या sea water उसमें हमको find out होते हैं, उसमें ज़्यादा करके मिलते हैं, या फिर वो किसी other organism के अंदर हमको मिलते हैं, the body of other. So we can see over here they can found in the body of other organisms, and they are pathogenetic. So what is pathogenetic? Anything that causes disease. Okay, मतलब जो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती है, that called pathogenic. So that is the protozoa. So protozoans are found in the soil. Okay, so आगे देखते हैं कि what are they and what are the other characteristic of that. तो ये समझ में आया ना what is pathogenic का meaning. Pathogenic का meaning is anything, any organism that causes disease. So ऐसा उसको क्यों बोला गया है, तो हम लोग आगे देख रहे हैं. So these are the unicellular organisms with eukaryotic cell. So all we know, so what is eukaryotic cell and the unicellular organism, right? There is a great variation in cell structure, organs of locomotion, and mode of nutrition among protozoans. So basically we can't say anything about the protozoan that हाँ नहीं वो एक decomposer है, या फिर हम लोग ने देखो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे देखो the mode of nutrition we saw over here, that we can say the mode of to divide. वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, एक सैप्रोफैटिक भी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं. सो देयर इज नो सर्टन लाइक एक ही मीडियम नहीं है उनका खाने के लिए. सो दैट इज व्हाट दे एक्सप्लेन ओवर हियर. देयर इज ओके, so there is great variation. So there is great variation in cell structure, then organs of locomotion, and the mode of nutrition. So there are the great variation. तो एक simply जैसे देखो देखो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अब ये बेसिकली बैक्टीरिया दे आर डिपेंड्स ऑन अदर. सो दे आर लाइक वी कैन से हेटेरोट्रोपिक्स. ओके, सो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ. यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखेंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इफ दे आर डिपेंड ऑन अनदर एनिमल, सो दे आर हेटेरोट्रोपिक, राइट. सो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया का बोलते मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोपिक, सेम एज इट इज. यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स का क्या, सॉरी, प्रोटोजोआस का क्या है, एक सर्टेन नहीं है, तो वो किसी भी मोड से वो खाना उनका ले सकते हैं. So this is what they explain over here. So these organisms produced by the simple cell division. So we all know what is cell division, right? We all know what is cell division. So basically, they reproduce by the cell division, simple cell division. And the examples of protozoas are amoeba, paramecium, that free living in dirty water, because they actually live free in dirty water. So this is paramecium. And amoeba we all know how it looks. And then Entamoeba histolytica causes embosis. So what is embosis? Embosis is डायरिया वी कॉल्ड. कल ही हमने एक्सप्लेन किया था हगवन, जिनकी वजह से हमको जुलाब वगैरह लगता है ना. तो ये बेसिकली इसके वजह से, ये जो प्रोटोजोआ है इसके वजह से हमको बेसिकली जो एम्बेसिस का जो कंप्लेंट्स है वो राइज होता है. Just hold on. So how does he look? So he basically look like this, Entamoeba histolytica. Okay, and then we have Iglia, that is autotrophic. So जैसे अभी आपको बताया था, देखो प्रोटोजोआ का उनका एक सर्टेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है. दे कैन
इधर हेटरोट्रॉपिक, दे कैन ऑटोट्रॉपिक, और वो दूसरे को कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो एल्गिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, जो खुद का खाना खुद बताते हैं, बट स्टिल ही इज प्रोटोजोआ। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, yes, sir. ओके, गुड। यस सर। अगर कुछ डाउट रहेगा तो सिंपली अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, बीच में रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हियर इट इज द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। आगे हम जाते हैं तो वी हैव फंगी और फंगाई। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली उसका साइज क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली उसका साइज है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सो हियर वी ऑलरेडी हैव, सी, we already have the what is this. So this is basically reference size for the organisms. So algae का size क्या है? 10, sorry, we were at fungi. तो fungi का size क्या है? तो 10 micrometer to 100 micrometer. So what are fungi? So these are found in decaying organism, organic matter and the dead bodies of plant and animals. So basically where we found fungus. तो फंगस हमको उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज रहती है, मतलब प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, जहाँ पे वो कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज देयर लाइफ, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंजम्पशन। वो प्रोड्यूस भी नहीं करते और ना ही किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं अपना खाना जनरेट करने के लिए। तो दे आर बेसिकली कंज्यूम, वी कैन डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। तो जिनकी वजह से वो कोई भी डेड एनिमल रहेगा या कुछ भी रहेगा तो वो खाने वाले लोग हैं। So that is what they explain over here. So these are eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible with naked eyes. Okay. So why they explain this, like some are eukaryotic organisms. Okay. So basically they are eukaryotic organisms. Some are unicellular and others are visible with naked eyes. So देखो how we can see them with the naked eyes. So basically क्या था, हमने कल ही देखा था कि ब्रेड के ऊपर अगर कुछ कॉटन लाइक हम लोग को लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज फंगाई। सो हमको विजिबल है ना आंखों से। सो दैट इज व्हाट दे एक्सप्लेन ओवर हियर कि सम्स आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आई। दे आर सेप्रोफेटिक, okay, they are saprotropics and then observe their foods from decaying organic matter. So वो बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर्स रहता है उनको डिकम्पोज करते हैं, दैट्स व्हाई। सो वो डिकम्पोज करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वही उन्होंने यहाँ पे बताया है। दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो उनको कोई भी अगर ऑर्गेनिक रहता है, ऑर्गन्स रहता है या फिर वी कैन से कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, उनको वो डिकम्पोज करके वो उनका फूड जनरेट करते हैं। So basically, they reproduce this sexually and asexually by cell division or budding. Okay, so they reproduce sexually or asexually by cell division or budding. So I hope आपको budding एक क्या फैक्टर है वो पता रहेगा। What is budding? कुछ याद है budding? What is budding? Alright, cool, no problem. यहाँ पे हम बता देते हैं। So basically, what is budding? तो budding यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा है सबको? इमेज दिख रहा है? Just raise your thumb अगर दिख रहा है तो। So हाँ, तो you can unmute yourself. So basically what is budding? So एक parent yeast रहता है और यहाँ पे हम लोग consider करते हैं fungi. So basically fungi जो रहता है ना, fungi, okay, so fungi का उसका जो birds रहता है वो बाद में एक यहाँ पे generate होता है bird, तो वो bird बाद में we can say एक separate हो जाता है parent body से। So this is new yeast cell and this is parent body. बाद में वो पेरेंट बॉडी एक चाइनीज सेल में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे स्प्रेड होती है। सो दिस इज एक्चुअली द बडिंग इन यीस्ट, बट इसका रेफरेंस लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अभी देखो, अभी जस्ट ध्यान से देखो, ये है बर्ड। ओके, सो यहाँ पे बर्ड जनरेट हो रहा है पेरेंट सेल से और बाद में न्यू एज सेल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अभी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। आई विल शो यू, लाइक सी, this is fungi, right? So sporangium is the part where their seeds are collected. So means हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो ये अभी एक पेरेंट हो गया, तो पेरेंट का यहाँ पे
बोलते हैं उस थिंग से वो सेपरेट होके फिर वो उनका बडिंग करते हैं, यानी वो असेक्सुअली वो जाके आगे उनके सीड पास करते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, आप याद रखो कि व्हाट इज बडिंग। तो ये मैं जस्ट एकदम इसके पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द रेफरेंस यू कैन कलेक्ट इन योर माइंड। सो हाउ द फंगाई, वी आर टॉकिंग अबाउट फंगाई, राइट? हाँ, so basically this is how they reproduce themselves. So I will show you the picture again. हाँ, so this is the thing. So this is rhizoid, sorry. So sporangius and the sporangiophore. So basically ये जो sporangium रहता है, तो sporangium is basically columella, और ये जो बर्ड आपको दिख रहा है, बर्ड लाइक थिंग ये दिख रहा है आपको, तो ये बेसिकली इससे उनके जो सेल्स रहते, सेल्स और वी कैन से द अदर पार्टिकल्स दे मूव होते हैं, तो मूव ऑन पास ऑन होके दूसरे जगह पे जाके वो तो खुद की आबादी बढ़ाता है। ओके, सो दे बेसिकली रिप्रोड्यूस देमसेल्फ लाइक दिस। तो समझ में आया ये पॉइंट, व्हाट इज बडिंग बेसिकली? Yes, sir. हाँ ते बोला। चालूच आहे. ते चालूच आहे. Yes, sir. हाँ बोला बोला, काय बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोरे सरांना बोलताय। when we sneeze or cough, जेव्हा आपण खोकतो किंवा शिंकतो ना, सी अशाच प्रकारचे ड्रॉपलेट्स पण आपल्या नाका तोंडातून बाहर पड़तात, गेटिंग समझा? और ये कोरोना वायरस है ना, ऐसे ही स्प्रेड हो रहा है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, मास्क यूज करते हैं। समझा? तो आगे So it आगे है, वायरस के बारे में है आगे, आप टेंशन मत लो। okay, so it is just the explanation for your current thing. Understanding, Okay, like what is budding actually. keep it on, keep it on. So this is the thing. So they reproduce themselves by budding. So here with the, so examples are baker's yeast, candida, and mushrooms. Okay. So mushroom we all know how he look. तो फिर भी यहाँ पे अगर pics वगैरह रहेगा तो देखते हैं book में। हाँ, so this is like mushroom we can call. Sir, हाँ बोला ना। Candida means Candid. Candida. हाँ, कैंडिडा ये एक वी कैन से एक फंगाई का स्ट्रक्चर है, उसका पिक्चर्स देखना है तो आपको दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम। That is candida. हाँ, कैंडिडा फंगाई। So this is how exactly look like. So basically उसके वजह से हमारे इन्फेक्शन होता है, तो उसी को हम कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं। बेसिकली तेज है ना सर? Fungal infection, it is a fungal infection. फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे लिखा है, देखो लाइक ऐसे उसके वजह से ये ऐसा चीज हमको होता है। It look like this. So that is candida function with infection and okay, समझ में आया? समझ लो। Yes, sir. Yes, sir. पुढे जाऊया। Yes, sir. म्हणजे थांबा 2 मिनिटं, एक फाईल प्रॉब्लेम। सॉरी। ओके, तो आपण इथं होतो कॅन्डिडावर, राईट? ओके, तो पुढे पुढे जाऊया। पुढे आपल्याला आहे अल्गाय. सो अप्रॉक्सिमेटली साइज ऑफ अल्गाय इज 10 micrometer to 100 micrometer. So we can say the fungi and algae are the same, approximately the same in size. See, okay. So what are the algae? So we will see the next. आपण बेसिकली त्याला ओके, सो पुढे हो रहा है, मराठी वर्ड आठवला मी बोलतो. सो दे आर बेसिकली aquatic we can say. They are aquatic, they are eukaryotic unicellular autotrophic organisms. So what are they? Autotrophic. So basically they made their food by themselves. Okay,
Then photosynthesis is carried out. Photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. Okay, so what is chloroplast? I guess we all know. Because of them, the plants can perform the photosynthesis process. So this is the basically the algae में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कैरिड कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। इसलिए वो है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर है। और यूकैरियोटिक सेल यानी उनका जो सेल है वो स्ट्रक्चर वो पूरे से बंधा हुआ आई मीन बन चुका है। सो दे आर लाइक क्लोरेला एंड देन वी हैव okay Chlamydomonas, that is the Chlamydomonas. So, and the very few species of algae are unicellular, most of them and multicellular and visible with necked eyes. So आपण एक कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर किंवा आपण सीड्यावर बघा हरित हरित काहीतरी हिरवं पावसाळ्यात आपण जमा जातो. सो बेसिकली त्याला आपण मराठीत काय वर्ड बोलतो? शेवाळ, शेवाळ राईट. सो शेवाळ आपण बोलतो बघा. सो दॅट इज व्हॉट अल्गाय. ते एक्सप्लेन करतात की अल्गाय कारण ते एक्वॅटिक असतात. त्यांना प्लांट्स आय मीन पाणीची आवश्यकता असते जगण्यासाठी. सो दिस इज व्हॉट दे एक्सप्लेन. So next we can see. So where it is, that is chlorella. उन्होंने यहाँ पे explain किया chlorella. So how the chlorella look like? This is chlorella. This is how do he look like? So chlorella. तो जैसे basically बोला जाए कि chloroplast है उसमें, जिसकी वजह से वो photosynthesis create मतलब he can carry it out. So उसके वजह से उसका जो color है वो green रहता है. कि we all know the plants are green basically. Okay, so why they are green? Because they have the chloroplast, जिसकी वजह से वो photosynthesis carried out करते हैं. So that's the reason they are green in color. So आगे है viruses. तो viruses अभी बहुत सुनाई दे रहा है viruses like coronavirus and all. So let's see what is that exactly viruses. So viruses are approximately in size 10 nanometer to 100 nanometer. Means they are very 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 small. They are generally the viruses are not considered in the living organisms, or they said to be the organisms at the age of living and non-living thing. So ये जो एक पॉइंट है वो एक बोलते हैं ना एकदम ध्यान से इसको समझे कि what why they said like this. Just hold on. Okay, so they said the organisms at the age of living and non-living thing. उन्होंने ऐसा क्यों बोला गया आगे हम फाइंड आउट करते हैं. So basically viruses ऐसा बॉडी रहता है, they are not considered as a living organism, or they said to be the organism at the age of living and non-living thing. So and they can only the studies under the microbiology. Okay, so viruses are extremely minute. जहाँ पे हम लोगों ने पहले से पॉइंट दिया था कि this is the size of the viruses. They are extremely minute. They are 10 to 100 times smaller than bacteria and can seen only in electron microscope. ये एक पॉइंट रखना कि like what are viruses? They are very 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 tiny in size. Then they are found in the form of independent particles. Okay, basically वो किसी ग्रुप में रहते हैं. जैसे बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया can form their colonies, but viruses not. They only found it independent. We can say independently we can found the viruses. The viruses is a long molecules of DNA. They are long molecules of DNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid, and RNA, that is ribonucleic acid, covered by the protein code. So basically their bodies are like कि उनका जो बॉडी रहता है वो एक लॉन्ग टर्म का डीएनए एंड वी कैन से आर डीएनए एंड आरएनए का रहता है जो प्रोटीन कोड से कवर्ड रहता है. So what are they? They're independent particles. Independent particle रहता है. The viruses are long molecules. They are long molecules of DNA and RNA covered by protein code. So viruses survive in living plants and animal cells and produce their own protein with the help of host cell. So see, so basically only the living plant and the animal cell produces their own protein with the help of host cell. So what are the viruses survive कैसे करते हैं? So how they produce their food?
वो उन्होंने बताया। बेसिकली वो क्या करते हैं, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट का जो सेल रहता है उसके ऊपर वो रहते हैं, वो जिसको हम लोग यहाँ पे होस्ट सेल करके बोला गया है। सो बेसिकली दे आर माइन्यूट। सो वो कोई भी सेल के ऊपर जाते हैं और उनका जो प्रोटीन रहता है, उनके जो प्रोड्यूसर रहता है और उनकी उस चीज से अपना प्रोटीन, खुद का प्रोटीन बनाते हैं, खुद का खाना बोलते हैं, बनाते हैं। और उसके बाद दे क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। सो सर्टन वायरस, अगर कोई भी एक वायरस रहता है, वो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के एक सेल के ऊपर हो जाता है, उसको वो उसका नष्ट करता है, वी कैन से, हाँ, उसका वो विनाश करता है, या फिर उसका जो खाना है वो खुद खा के उसको डिस्ट्रॉय करता है और खुद के रेप्लिकास बनाता है। और खुद के रेप्लिकास बनाने के बाद वो जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरे होस्ट, और दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम्स फ्री। सो वो जो होस्ट सेल रहता है उसको वो खाते हैं, बेसिकली वो डिकम्पोज करते हैं, उसका जो प्रोटीन है वो खुद खाते हैं, उसका जो सेल्स के रहते हैं, बाद में वो खुद को न्यूमरसली रेप्लिकास में क्रिएट करके होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और खुद फ्री हो जाते हैं। और फ्री जो बचे हुए फ्री वायरसेस रहते हैं वो दूसरे सेल्स के ऊपर फिर से अटैक करते हैं। तो दिस इज हाउ द वायरसेस वर्क। दैट्स व्हाई हमको बोला गया है कि किसी भी वायरस इन्फेक्टेड के मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कोई पर्सन रहेगा तो उससे दूर क्यों रहे, ताकि उसका वायरस हमारे जो सेल्स है, अच्छे बॉडी के सेल्स, उसके ऊपर अटैक ना करे, इसके वजह से। So viruses causes the many diseases to plants and animals. Generally, we can see the very well example that is coronavirus. So basically, what are the coronavirus? This is that. So coronavirus, or basically we will see the viruses only. So organism that age of living and the non-living thing. So basically they are not considered the living organisms, or viruses are extremely minute. They are 10 to 100 times smaller than bacteria, and they can see only in electron microscope. So they explain over there here, and let's see again. So they are found in the form of independent particles. They are separately found. They are not like bacteria जो colonies create करके रह सकते हैं. So they are long molecules of DNA, the DNA and RNA, then covered by the protein codes. So viruses survive only in living plants. तो देखो कोई भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर, और वी कैन से अगर कोई भी पेन वगैरह रहेगा, अगर उसके ऊपर वायरस रहेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता, बिकॉज दे नीड द होस्ट सेल। और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर तो नॉन लिविंग थिंग को कुछ सेल्स वगैरह तो नहीं रहते, दैट्स व्हाई दे कैन ओनली लिव इन प्लांट और एनिमल सेल, प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएटेड द न्यूमरस रेप्लिकास। सो उनका जो स्पीड है और मिनका रेप्लिकास का वो अच्छा खासा है। सो देन दे डिस्ट्रॉयड द होस्ट एंड बिकम फ्री। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्टेड द न्यू सेल्स। जैसा एक सेल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो डिस्ट्रॉय होने के बाद वो खुद के रेप्लिकास बना के वो दूसरे सेल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं, जिनकी वजह से हमारे मतलब द प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉजेज द मेनी डिसीजेस। so this is what they explain over here. हाँ मानसी, सब करते हैं, समझ में आ रहा है सब? समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस, ओके, so आता म्यूट करू शकता. ऑलराइट, प्रगति समझ में आ रहा है? स्नेहा, महेश मोरे, ओके. पायल समझते हैं ना? पायल, 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 yes sir. हाँ समजताय का म्हटलं? हॅलो, हाँ समझ. ऑलराइट, ओके. सो तो हाँ बोला. ओके, सो हियर वी गो. तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए व्हाट इज वायरसेस and the disease we can call it. So this is polio viruses. Firstly we have humans के ऊपर इफेक्ट करने वाला, then influenza viruses, then HIV AIDS viruses. So here is some example. Then cattle के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले कौन से हैं? Then procorna viruses, picorna viruses.
देन प्लांट के ऊपर है टोमेटो विल्ट वायरसेस और टोबैको मोसाइक वायरसेस, जिसकी वजह से मतलब प्लांट के ऊपर बेसिकली इफेक्ट करने वाले वायरसेस यहाँ पे बताया जा रहा है। होल्ड ऑन। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी आई मीन प्लांट और एनिमल्स के ऊपर ही वो अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरसेस that attacks bacteria. So here is the examples, some examples, and here is our lesson. तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो चुका है। तो अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो वो पूछ सकते हैं। You can unmute yourself and ask any doubt because we have completed our lesson over here. So let's go and ask me if you have any doubt and anything. हॅलो सर. हाँ बोल. सर पिकोर्ना व्हायरसचा डेफिनेशन काय? पिकोना ऍक्च्युली पिकोना व्हायरसेस अरे बघ द ह्युमन व्हायरसेस मध्ये इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आणि HIV व्हायरस येतात ज्याच्यामुळे त्यांना बिमारी असते. सो कॅटल्स मध्ये बेसिकली जी बिमारी आहे ते पिकोना व्हायरसेसचा ह्याच्यामुळे होते. बोला. अच्छा एक्झाम्पल. हा मी बोलतो 2 मिनिटं. यश गोडसे. येस सर. Yes. All these are the examples. Yes, and sir. example doesn't have any definition. Okay. ओके सर. या Okay. या. Suppose I say यश. So यश का definition क्या है? तो यश का definition क्या है? तो वही Okay. तो Yes. बेसिकली वही है कि ये वायरस है जिनकी वजह से कैटल्स को बोलते हैं बीमारियां होती है. तो या कैटल्स. एग्जैक्टली वो एग्जांपल दिए. अगर और कोई डाउट Okay. रहेगा तो यू कैन आस्क. मानसी, नो सर. ओके. No, sir. महेश, शिवम मिश्रा. No, sir. Yes. Doubt तो free. सूरज सर. बोलो. Ask them to write question and answers. Possible है तो question answers लिख के भेजो. हाँ इन Group केस अगर कुछ Question राहिलं answers. तर हाँ. तर मला नाही माझं क्वेश्चन असं म्हणणं आन्सर्स होतं. नेक्स्ट एक्सरसाइज त्यांना पाठवून द्यायला सांग. इफ यू एनी एक्सरसाइज त्यांना सांग पाठवायला. देन उनको देखने दो ना कितना आता कितना नहीं. इजी है बहुत. चैप्टर रीड करके आप देख सकते हैं और टेक्स्ट बुक तो सर ने भेजा हुआ है ऑलरेडी. फक्त एवढंच आहे की एक आता जर कोणाकडे हे असेल पेन पेपर वगैरे. हॅलो. नको आता वा. त्यांना नाही नाही, जमणार नाही, कारण actually मोबाईल आणि हे कारण सर्व हँडल करणं. बॅक्टेरियोफेज हे आहेच नाही, स्ट्रक्चर आहेच नाही आणि त्यांनी सांगितलं बॅक्टेरियोफेज दाखवा म्हणून. नाही काही ते शोधतील ते नेटवर. डोंट वरी. आप नेट नाही पे ढूंढ लो बेटा. हाँ हाँ हाँ. तर See, मग क्या त्यांना होता है आपण की पाठवून देऊया. सगळं नाही सगळं आपण देण्यापेक्षा ते पण शोधतील ना. डोंट वरी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॅक्टेरियोफाज. 2D स्ट्रक्चर आणि 3D स्ट्रक्चर. See, let them. आता मोबाईल त्यांच्याकडे आहे. They have internet with them, so they can find out. उनको दिखा दो, दाखवून दो त्यांना आणि ask them to draw it. ओके सी. सो हिअर इज द Okay. बॅक्टेरियोफेज. सो पुढे जाऊया. हा. सो दिस इज सिम्पल स्ट्रक्चर. त्याच्यात आपलं हे पण लिहिलं, लेबल्स पण केले त्यांनी. सी. तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है और बैक्टीरिया को कॉजेस होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है बेसिकली. तो दिख रहा है ये सबको? ये दिख रहा है? हाँ, sir. Okay. So here it is the lesson and all. So tail fibers, spike, base plate, cell, collar, nucleic acid, that is DNA base. जैसे हमने कहा था कि viruses are actually the long molecule of DNA and RNA, and then is caspid head. तो अगर कुछ डाउट वगैरह रहता है तो पूछ सकते हो. अच्छा टाइम है फिलहाल. कुछ है? एनी डाउट? पायल. Yes, sir. हा काय डाउट वगैरे आहे का? ओके. सो मग प्रगती, मानसी. Yes, sir. काय डाउट वगैरे आहे का? काय म्हणजे कोणता पार्ट जो कळायला नाही वगैरे असं, किंवा परत एक्सप्लेन करू? नाही sir. ओके चालेल. सो मग मला सगळेजण एक्सरसाइज करेपर्यंत पाठवणार आज इव्हिनिंग पर्यंत.
हॅलो. तो मग आज इव्हिनिंग पर्यंत तुम्ही बेसिकली जो एक्सरसाइज आहे तो सॉल्व्ह करून मला पाठवा, ठीक आहे. आणि इन केस जर काही नाही अडलं ना, तरी तुम्ही मला डिरेक्टली मेसेज करू शकता की सर मला हे समजलं नाही आणि याचं काय आन्सर येऊ शकतं एक्झॅक्टली. ठीक आहे. राईट, चालेल मग. थँक्यू एव्हरीवन. आपण करूया एंड मीटिंग करूया. आणि काय लेक्चर्स मध्ये असेल डाऊट वगैरे तुम्ही डायरेक्टली मला फोन वगैरे मेसेज करून विचारू शकता. ओके. बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.